A Delhi court on Friday issued an order to release Aam Aadmi Party leader Manish Sisodia after he got bail from the Supreme Court in cases related to excise policy. Special Judge Kaveri Pabeja gave this order while accepting the payment of bonds and bail amounts on behalf of Sisodia's lawyers. After his release from jail, Sisodia said, "Bharat Mata ki Jai, Inqilab Jindabad." The former deputy minister said this upon his release. And after he gets bail, he said, "We have brought this legal battle to its logical end through the Constitution. I thank you all for being with me. Kejriwal will also come out soon, and our fight is against dictatorship. This will continue." Listen his speech after he was released from the jail. बहुत बहुत सबको नमस्कार। मेरे सारे परिवार वालों को जो यहाँ आए हैं, जो इतने दिन से, जो 17 महीने से मेरी बहनें वहाँ खड़ी है, सब लोग कष्ट उठा रहे थे, आप सबको नमस्कार। आजाद मनीष सिसोदिया का नमस्कार। आप सबको आजाद मनीष सिसोदिया का नमस्कार। आप सबने 17 महीने मैंने कष्ट नहीं उठाया, आप सबने कष्ट उठाया है। मुझे पता है कि पूरे देश में मुझसे प्यार करने वाले इतने सारे लोग थे, पिछले 17 महीने में कई गुना बढ़ गए। और पिछले 17 महीने में मैं जेल में नहीं रहा। आप सब भावनात्मक रूप से एक एक पल, दिल्ली का एक एक आदमी, देश का एक एक आदमी, और खासतौर से दिल्ली के स्कूलों का एक एक बच्चा, देश के स्कूलों का एक एक बच्चा दिल से मेरे साथ रहा है। 17 महीने में उसके बारे में सोचता हूँ। मैं आज इस फैसले माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने संविधान की ताकत का इस्तेमाल करते हुए तानाशाही के मुंह पर एक तमाचा मारा है। आज मेरा रोम रोम, जब से यह ऑर्डर आया है सुबह से, मेरा रोम रोम बाबा साहब के प्रति ऋणी हो रहा है। एक एक पल में समझ नहीं पा रहा हूं कि आज इतने दिनों बाद, इतने वर्षों बाद बाबा साहब के प्रति कर्ज को हम कैसे उतारेंगे। उस वक्त उन्होंने तय कर लिया था कि आने वाले समय में अगर कोई तानाशाही सरकार आके निर्दोष लोगों को जेल में डालेगी तो संविधान उसको बचाएगा। आज मैं बाहर आया हूं तो आपके प्यार की बदौलत, आपके प्यार के साथ साथ भगवान के आशीर्वाद की बदौलत, सच्चाई की ताकत की बदौलत, और सबसे बड़ी चीज जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि कोई तानाशाही सरकार आएगी तो तानाशाही भरे कानून बना बना के जब नेताओं को, विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी तो इस देश का वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उनकी रक्षा करेगा। एक आम आदमी जो तानाशाही के खिलाफ बोलेगा, तानाशाही के खिलाफ बोलने वालों को अगर सरकार जबरदस्ती जेल में डालेगी तो संविधान बचाएगा, आज मैं बाबा साहब का
और इस देश के संविधान के एक एक शब्द का ऋणी हूं और अब मेरा पूरा जीवन बाबा साहब का और संविधान का ऋणी है। आज Friends, former Delhi Deputy Chief Minister Sisodia has been in jail for 17 months. He was released from jail today. The Supreme Court granted bail to Sisodia on payment of a personal bond of rupees 10 lakh and 2 bail amounts of the same amount in corruption and money laundering cases registered by the Central Bureau of Investigation and the Enforcement Directorate. The bench said that Sisodia has been in jail for 17 months, while the hearing of the case has not started yet, due to which he has been deprived of the right to speedy trial. The bench said that sending them to the lower court for bail in these cases would be a mockery of justice. The appeals court said that now the time has come for the lower courts and the high court to accept that the principle of the bail is a rule and jail is an exception. Friends, Sisodia was arrested by the Central Bureau of Investigation on February 26, 2023 for alleged irregularities in the formulation and implementation of the Delhi Excise Policy 2021-22. This policy was later repealed. The Enforcement Directorate arrested him on March 9, 2023 in a money laundering case. This money laundering case is based on the CBI affair. And Sisodia resigned from the Delhi cabinet on 28 February 2023. आज देश की सबसे बड़ी अदालत की डबल बेंच ने, जिसमें जस्टिस गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन थे, उन्होंने एक लैंडमार्क फैसला दिया। और ये फैसला ना सिर्फ मनीष सिसोदिया जी के लिए बल्कि तमाम उन पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए मील का पत्थर साबित होगा जो बिना किसी सबूत, गवाह, पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के काले कानून के तहत जेल के अंदर सड़ रहे हैं। कोर्ट ने कुछ बड़ी बातें अपने फैसले में कही हैं जो मुझे लगता है पूरे देश के लिए, खासतौर पे वो जो टीवी बहस के अंदर चलता है, उसके लिए एक रोशनी देने का काम करेगी। नंबर 1, कोर्ट ने कहा बेल इज अ राइट, जेल इज अ एक्सेप्शन। ये सिद्धांत है देश की कानून व्यवस्था का कि आप किसी को बेल दें वो उसका हक है और आप उसको जेल में रखें वो एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। और यहां पे ये मामला इसलिए साबित होता है बिना किसी कानून के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के 17 महीने तक मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं। कानून ये कहता है कि आप मुकदमा कीजिए, सबूत रखिए, गवाह रखिए, दोषी साबित कीजिए, कन्विक्शन हो, सेंटेंस कराइए। 5 साल का नहीं, आप 10 साल की सेंटेंसिंग कराइए, आप जेल में रखिए, आपका स्वागत है। मगर जहां पे आपने ट्रायल ही नहीं शुरू की, साबित कुछ नहीं हुआ, वहां पे आप किसी को 17 महीने कैसे जेल में रख सकते हैं? कोर्ट ने कहा कि आज देश में स्नेक्स एंड लैडर, सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है। आदमी लोअर कोर्ट में जाता है, जमानत के लिए इंतजार करता है, मैटर रिजर्व हो जाता है, इंतजार करता है, डिसमिस। फिर हाई कोर्ट में जाते हैं, सुनवाई होती है, रिजर्व होता है, इंतजार होता है, डिसमिस। फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, फिर वापस। ये सांप सीढ़ी का खेल आज केंद्र सरकार ने देश में चलाया हुआ है। इस मामले में सितंबर में केंद्र सरकार और उसकी ईडी ने अंडरटेकिंग दी कि 6 से 8 महीने के अंदर पूरी ट्रायल को कंप्लीट कर लिया जाएगा। आज हम अगस्त में बैठे हैं, लगभग 1 साल हो गया, ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है। यह बात कोर्ट ने कही। जब ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ है, ऐसे मामले में जिसमें हजारों, 80,000 से ज्यादा दस्तावेज हैं, 200-250 लोगों से ज्यादा गवाह हैं, 468 गवाह हैं, ऐसे में ट्रायल को तो 10 साल लगेंगे।
तो क्या 10 साल आप किसी को बिना कुछ साबित करे जेल में रख सकते हैं? ये तो हो ही नहीं सकता। कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात की लोअर जुडिशरी के बारे में, ट्रायल कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के बारे में, कि जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया कि 6 से 8 महीने के अंदर ट्रायल खत्म ना हो तो इनकी जो जमानत है उसको कंसिडर किया जाए, उसके बावजूद लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट जो है जमानत देने में हिचकिचा रहे हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर हर बेल की एप्लीकेशन जाके लंबित हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामले जो है पेंडिंग जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है इसका दबाव बन रहा है, जो कि गलत है। एक और बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, जब सुप्रीम कोर्ट उठ रहा था तो अभिषेक मनु सिंघवी जी ने मुस्कुरा के कहा, थैंक यू माय लॉर्ड। 6 तारीख को मामला रिजर्व हुआ, 9 तारीख को आपने सुना दिया, स्पीडी फैसला आया। तो दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी है। AAP leaders today termed the Supreme Court verdict as a victory of truth. Mr. Sisodia was granted bail nearly 18 months after his arrest in the liquor policy case. The Supreme Court's verdict, delivered by Justices B.R. Gavai and K.V. Vishwanathan, said it would be a travesty of justice to continue Mr. Sisodia incarceration without significant progress in the trial. अठारह महीनों से देश के एक ऐसे व्यक्ति को मोदी जी ने जेल में डाला हुआ था, जिस मनीष सिसोदिया जी ने इस देश की राजनीति को एक दिशा दिखाई। उन्होंने बताया कि अगर आप सरकार में आते हो तो क्या क्या कर सकते हो। वो मनीष सिसोदिया जी जो सुबह 5:30 बजे उठ के पूरा दिन एक एक स्कूल पूरी दिल्ली के घूमते थे, उस जैसे पवित्र व्यक्ति को 17 से 18 महीने तक बिना किसी सबूत के, बिना किसी एक कोरे कागज का भी कोई सबूत के बिना उनको जेल के अंदर डाला था इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। बहुत गलत है, बहुत घटिया हरकत है। हम डे 1 से कहते थे कि इस केस में कुछ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक दिन भी ये केस नहीं टिकेगा, और आज वही रहा। आप ये देखिए, देश के अंदर शायद पहली ऐसा मौका हो रहा है कि 2-2 साल तक जेल के अंदर लोगों को रख दे रहे हैं और ट्रायल तक नहीं शुरू कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कसाब के साथ भी ऐसा हुआ होगा। आतंकवादियों से ज्यादा बुरा सलूक आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। आज पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे इस देश के प्रधानमंत्री हो, पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस का बहुत धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हिम्मत की, जिन्होंने जुर्रत की इस तानाशाही के खिलाफ खड़े होने की। दिल्ली को 2 साल 2.5 साल पीछे ढकेला इन लोगों ने। आज बहुत सारे काम, बहुत सारे प्रोजेक्ट रोके इन लोगों ने, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि एक अरविंद केजरीवाल जी से नफरत है, एक आम आदमी पार्टी जो एक होप बन रही है इस पूरे देश के लिए, उसको खत्म किया जाए। ये आज पूरी तरह से हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं और हम प्रधानमंत्री से भी कहते हैं कि आपको देश की जनता ने बहुमत दिया है, कुछ अच्छे काम करिए। एक छोटी पार्टी के पीछे आप क्यों लगे हुए और इस तरह से कर रहे हैं जिसमें पूरे देश के अंदर मैसेज जा रहा है कि आप कंप्लीट तानाशाही कर रहे हैं। जो आपके साथ, जो आपकी बात में बात नहीं मिलाएगा उसको आप खत्म कर देंगे इस तरह से फर्जी केसेस बनाकर। Delhi Education Minister and Aam Aadmi Party leader Atishy, she broke down today as she reacted to the Supreme Court's decision to grant bail to Manish Sisodia, the former Deputy Chief Minister of Delhi, in the liquor policy case. Atishy, while speaking at a school in the national capital today, said, "Today the truth has shown. The students of Delhi have won. He was put in jail because he provided good education to poor children." और आप सबको आज शानदार स्कूल खोलने के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन आज इस स्कूल पे बधाई देने से पहले, इस स्कूल के बारे में बताने से पहले, मैं ना सिर्फ इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता को, बल्कि मैं दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले हर बच्चे और उनके माता पिता को बधाई देना चाहती हूं, क्योंकि आज के इस शुभ अवसर पर
दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में, जिनको एक झूठे केस में 17 महीने तक जिन्हें 17 महीने तक एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। मनीष सिसोदिया जी, और जिस दिन मनीष सिसोदिया जी की बेल हुई, आज उन्हीं के द्वारा एक स्कूल जिसका उनके द्वारा शिलान्यास हुआ था, आज उसका उद्घाटन हो रहा है। तो एक जोरदार जयकारा मनीष सिसोदिया जी के लिए लगाएंगे। मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया। With this, myself, Jagdanand, Namaskar.